electricity, a quick revision. There is no deletion in this chapter, so we will be studying this chapter throughout. Electric current. What is an electric current? It is the amount of charge that flows in unit time, any time that we are observing through a particular area. Okay, so in a way we can say that it is a rate of flow of charges. If I assume some conducting wire or something where the charges are flowing, if in a particular area some amount of charges are flowing, I will note down the time and this will give me how much current is being flown. Okay, its unit is ampere. 1 ampere is when 1 coulomb of charge flows in 1 second in a particular area. Okay, 1 coulomb is 6 into 10 to the power 18 electrons. एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? We have studied in class 9th. 1.6 into 10 to the power 19 coulomb. Now coming to electrical potential difference. It is given between the 2 points because difference, जैसे कि आप मैथ्स में करते हैं, if you are asked to find out the difference, then you need at least two numbers. Okay, so here also we need 2 points where the current is flowing. ठीक है, तो अगर ये पुश कर रहा है किसी चीज़ को, that means it is doing some work. Okay, so potential difference is actually the work done. So it is the work done to move a unit charge from one point to another point. If I have 2 points, the amount of work done to push a charge from this point to this point will give me the potential difference. It is denoted by capital V, and we can say that it is its formula will be W by Q because it is the work done on some charge. Its unit is volt, again denoted by capital T. 1 volt is when 1 joule of work is done to move 1 coulomb of charge from one point to another point. Okay, coming to the circuits. A circuit, it comprises of majorly a battery, a conducting wire, obviously through something connect जो हम करेंगे जिसके थ्रू करंट फ्लो करना चाहिए. वी हैव अ प्लग की, स्विच ऑन है या ऑफ है, जैसे स्विच होता है आपके घरों में. वी नीड सम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स टू बी कनेक्टेड, बी इट अ बल्ब, इट कैन बी अ फैन, इट कैन बी combination of electric devices, fan, bulb, tube light, etc. So if you see you have the symbols of circuit in your book, please go through that. If the key is closed, then the current is shown moving. It will move from positive towards the negative terminal, never show it the other way. Okay, if the key is open, I am not putting any dot in between, the current will not flow because the circuit is not complete. So I will not show any arrow because the arrow will depict the flow of current. Ohm's law. We have seen that V is directly proportional to I. How? The amount of work we do to push the charges, the more current will flow. ठीक है, जैसे कि इफ़ यू आर गोइंग आउट फॉर अ साइकिलिंग, जितनी ज़ोर से आप पेडलिंग करेंगे, जितनी ज़ोर से आप पेडल्स पे ज़ोर में लगाएंगे, उतनी ही तेज़ साइकिल भागेगी. और इवन इफ़ यू आर रनिंग, द मोर पुश यू गिव टू योर सेल्फ, योर स्पीड विल बी मोर. उसी तरीके से जितना वर्क डन किया जा रहा है चार्जेस के ऊपर, उतनी ही तेज़ी से करंट फ्लो करेगा. ठीक है, सो वी कैन से दैट V by I इज़ अ कॉन्स्टेंट. उस कॉन्स्टेंट को हम रेजिस्टेंस कहते हैं. ठीक है, सो दिस गिव्स अस V इज इक्वल टू IR. रेजिस्टेंस इज व्हाट? इट इज़ अ प्रॉपर्टी दैट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज. हर सब्सटेंस में होती है, हर मटेरियल में होती है ये प्रॉपर्टी, जो कि फ्लो ऑफ चार्जेस को रोकती है, विच कैन रेजिस्ट इट. अब किसी में ये चीज़ ज़्यादा होती है, किसी में ये कम होती है. इन द मटेरियल्स वेयर रेजिस्टेंस इज़ लो, दे कंडक्ट electricity in a good way, they are called good conductors. Where the resistance is high, जहाँ पर चार्जेस को फ्लो करने के लिए ज़्यादा रोका जाता है,
वहाँ पर इंसुलेशन ज़्यादा होगी, कंडक्टिविटी कम होगी. Also, yes, resistance is said to be constant here, but it changes with temperature. तो constant क्यों बोला? Constant इसलिए बोला क्योंकि at a particular temperature of that particular material, resistance will remain same. ठीक है, अगर गोल्ड है तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पर्टिकुलर कंडीशंस में गोल्ड की रेजिस्टेंस सेम रहेगी अगर उसके फैक्टर्स जो भी हम आगे पढ़ेंगे वो सेम है तो. ओके, इट्स यूनिट इज ओम. 1 ohm is the potential difference when it is 1 volt of potential is applied to move 1 ampere of charge. और उससे जितनी रेजिस्टेंस बनती है दैट इज कॉल्ड 1 ohm of resistance. Now coming to the factors affecting resistance. Resistance depends on the length of the wire. कितनी लंबी है, it is directly proportional. ठीक है, and area of cross section. अगर कोई thick wire है, cross section means अगर उस वायर को हम काटते हैं एक सर्कल सा मिलता है तो इस सर्कल का एरिया कितना है. ओके, सो इफ़ इट इज़ अ थिक वन तो एरिया ज़्यादा होगा, इफ़ इट इज़ अ थिन वन देन एरिया कम होगा. सो वी कैन से दैट रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द लेंथ एंड रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. अगर हमें इसको इक्वेट करना है, कुछ वैल्यू निकालनी है, देन वी नीड अ कांस्टेंट. दैट कांस्टेंट हेयर इज कॉल्ड resistivity. So resistivity is actually the resistance that is provided by the particular material. Resistance क्या है? It is a property of the material which provides hindrance to the flow of the charge. Now, in a circuit, multiple things are connected in different way. If they are connected in a way that while we are moving in the same path, I don't need to change my path, I say that they are connected in series. तो कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस होगी, हर डिवाइस के अंदर मटेरियल होगा जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है. ओके, एवरी कंडक्टर हैज़ इट्स ओन लेवल ऑफ रेजिस्टेंस. कुछ भी है, इफ़ आई हैव connected a bulb, if I have connected a fan or refrigerator, anything, it will have its level of resistance. Because अगर resistance नहीं होगी तो unlimited current flow करेगा. That unlimited current flow will release unlimited energy, unlimited heat. That is not good for the appliance. So every material in natural way has its own resistance. तो हम कुछ भी डिवाइस, कुछ भी अप्लायंस लगाएंगे उसमें अपना रेजिस्टेंस होगा ही. ठीक है, सो इफ़ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, आई विल से कि एक ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट विल बी देयर जो कि इन तीनों रेजिस्टेंसेस को ऐड करके आएगा. ठीक है, सो इफ़ आई ऐड these 3 resistance I will get the overall resistance of the circuit. क्योंकि अगर मैं 3 चीज़ों के एक साथ बात नहीं करना चाह रही हूँ, अलग अलग बात नहीं करना चाह रही हूँ, आई नीड इट फॉर द होल सर्किट, तो हम तीनों रेजिस्टेंस को ऐड कर देंगे. आप लोगों को न्यूमेरिकल्स जो आएंगे उसमें भी कुछ नहीं करना, आपको जो जो डिवाइसेस दी हैं उनकी रेजिस्टेंसेस को ऐड कर देना है टू फाइंड द ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट. ऑल्सो इन a series connection the current will remain the same but voltage will differ. voltage differ कैसे करेगी? इस resistor की अलग होगी, इसकी अलग होगी, इसकी अलग होगी, because at every 2 point where the current is shifting, it is flowing, ठीक है, the potential difference हर point पे will be different. Coming to the parallel connection, if I am walking, मेरा करंट फ्लो कर रहा है यहाँ से यहाँ पर आते हैं. नाउ आई हैव 2 पाथ्स टू गो फ्रॉम हेयर. ठीक है, वोल्ट मीटर से तो जाएगा ही करंट, दैट इज़ द डिवाइस दैट इज़ कनेक्टेड, बट आई विल गो हेयर ऑल्सो, आई कैन गो देयर ऑल्सो. सो इफ आई हैव an alternate path, I say that my devices are connected in parallel. Okay,
सो पैरेलल कनेक्शन के लिए रेजिस्टर्स को हम सिंपली ऐड नहीं करते, वी ऐड देयर इन्वर्सेस एंड द रिजल्ट वी गेट इज द इन्वर्स ऑफ ओवरऑल रेजिस्टेंस। तो आप जब कैलकुलेशन करेंगे आपका आंसर 1/R में आएगा, आपको उसको इन्वर्स करना है नीचे का ऊपर, मतलब डिनोमिनेटर को ऊपर और न्यूमरेटर को नीचे करेंगे, तब आपका रियल आंसर आएगा। ओके, इस केस में current will be different in particular hours and voltage will be same. Why voltage will be same? Because between 2 points voltage is same. तो ये भी इसी में लगा है, ये भी इसी में लगा है, सो ये वोल्टेज सेम रहेगी। हीटिंग इफेक्ट, हर केमिकल एनर्जी जब कन्वर्ट हो रही है या हर एनर्जी जब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, इट इज़ बीइंग ट्रांसफर टू समथिंग एंड ऑल्सो चेंजिंग। सो जब हम डिवाइसेस की बात करते हैं, बैटरी की बात करते हैं, बैटरी में द केमिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम यूज़ कर रहे हैं ईदर इन फैंस और बल्ब्स, मतलब हम मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए कर रहे हैं या हम हीट एंड लाइट एनर्जी में कर रहे हैं। जनरली एक एक्स्ट्रा हीट जनरेट होती है जो कि वेस्ट हो जाती है। जैसे फ़ैन को हम चलाएं तो वो गर्म हो जाता है, दैट इज़ द हीट दैट इज़ वेस्टेड। बल्ब ऑन करते हैं, लाइट तो मिलती ही है पर बल्ब से हीट भी निकल रही है जो कि वेस्ट है। इफ़ वी यूटिलाइज दिस heating effect of electric current in some appliances that will be beneficial for us, जैसे इलेक्ट्रिक टोस्टर है, इलेक्ट्रिक आयन है, इलेक्ट्रिक हीटर है, जिसमें कि इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब कमिंग बैक टू द वर्क डन, एक चार्ज पे वर्क कितना हो रहा है, कितने चार्ज को हम कितनी वोल्टेज से मूव कर रहे हैं। ठीक है, और अगर हम पावर की बात करें, सो हाउ मच वर्क इज़ बीइंग डन इन अ पर्टिकुलर टाइम। अगर आपसे आपकी कैपेसिटी ऑफ स्टडी पूछी जाए कि आप या आप कैपेसिटी ऑफ वर्क पूछा जाए 1 घंटे में आप कितने पेजेस लिख सकते हैं, सो दैट इज़ योर पावर। ठीक है, सिमिलरली देयर इज अ पावर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑल्सो, जो करंट फ्लो कर रहा है उसका भी। सो वी हैव सीन दैट वर्क डन इज वी क्यू, और अगर हम उसको टी से डिवाइड करते हैं, रेट ऑफ डूइंग द वर्क विल गिव अस द पावर। दिस वी हैव डन इन 9th इन जनरल। ठीक है, मैकेनिक्स में। नाउ हमें ये पता है, बिगिनिंग में पढ़ा था Q/T इज इक्वल टू I, सो वी कैन ऑल्सो से दैट द पावर ऑफ अ सर्किट कैन बी गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ V एंड I। ठीक, अब हीट रिलीज़ हो रही है, हीट रिलीज़ हो रही है कितनी देर में, जितने टाइम तक हमने उस डिवाइस को यूज़ किया। लाइक इफ़ आई यूज़ अ बल्ब फॉर 5 minutes, इफ़ आई यूज़ अ बल्ब फॉर 2 hours, तो हीटिंग उतनी ही ज़्यादा होगी जितनी देर तक हम उसको यूज़ कर रहे हैं। सो आई विल बी मल्टीप्लाइंग इट बाय टी। तो जो भी वर्क डन हुआ है, जब मैं उसको जो पावर है उसको टी से मल्टीप्लाई करूँगी, आई विल गेट द एनर्जी दैट हैज़ बीन यूज्ड। ठीक है, इसी में अगर हमें दूसरा फॉर्मूला चाहिए तो हम ओम्स लॉ लगाएंगे और उसकी वजह से हमें एक और फॉर्मूला मिल जाएगा I²RT। एप्लीकेशंस हमने देखा डिफरेंट अप्लायंसेस पे यूज़ हो सकता है और फ्यूजेस जो घर में लगे हैं उसमें यूज़ हो सकता है, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट नहीं होता। अब आते हैं उस चीज़ पर जो कि हमें बताती है कि घर में बिल कैसे आता है। ठीक है, वी आर यूजिंग पावर एट होम, वी आर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, सो वी आर बीइंग चार्ज्ड। क्या हम इलेक्ट्रिक करंट के लिए हमें चार्ज किया जाता है या इलेक्ट्रॉन्स के लिए चार्ज किया जाता है? नो, वी आर नॉट बीइंग चार्ज फॉर यूजिंग द इलेक्ट्रॉन्स। द इलेक्ट्रॉन्स आर नेवर कंज्यूम्ड। ठीक है ना, दे आर द मैटर एंड द मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो हम इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम नहीं कर रहे, हम वो एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं जो उस इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए प्रोवाइड की जा रही है। सो वी आर एक्चुअली यूजिंग some power, the energy that is being provided to move the electrons through our circuit। ठीक है, सो पावर हमने देखा, पावर इज इक्वल टू वी आई। अगर हम इसमें ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं, इट कैन बी V²/R, इट कैन बी I²R। ओम्स ट्राइंगल याद रखिएगा जब भी हमें कन्वर्जन्स करनी है तो। ठीक है, इट्स यूनिट इज वॉट, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल W। 1 watt is
when 1 ampere of current is moving when the potential difference of 1 volt is provided. ठीक है, अगर हम बिगर यूनिट की बात करें तो हम किलोवाट की बात करेंगे. लाइक 1 kg is equal to 1000 grams, so 1 kilowatt is equal to 1000 watts. सो यूनिट, कमिंग बैक टू यूनिट इलेक्ट्रिसिटी, कि हमें बिजली का बिल आता कैसे है. हमें आता है यूनिट्स में. दे गिव अस द बिल for the charges for the units that we consumed. How these units are calculated? These units are calculated by the energy that we have consumed. So the power and how much power is consumed in how much time. ठीक है. So kilowatt hour is the unit of electricity. 1 kilowatt hour is when we have 1000 watts in 3600 seconds. So if scientifically in scientific notation I want to write it, I will write it, it will be 3.6 into 10 to the power 6 joules. Okay, so I hope the chapter is somewhat clear to you. Please note down all the formulae on a page and paste it in your room. Keep them revising because it is not a difficult chapter. It is just having too many formulae to be applied. So take care, have fun, keep revising, and please put up your doubts if any.